Hello, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine, sir. All right. So 2 minutes till everybody joins in. 3:15 बोला था मैंने. So we'll start the class in 2 minutes. Okay. Meanwhile, अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लो और चैप्टर नोट्स निकाल लो. हम कौन सा कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं ना? Okay. Yes, sir. ठीक है. तो निकाल लो तो. All right. Everybody here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool. Chalo. Put on your cameras. Put on your cameras, guys, so that you can. I can see you, so that you hear. On करो. फटाफट. Polynomials तुमने grade 9th में भी किया था, है ना? फटाफट फटाफट. All right. Good. Dhruv, come on video. All right. Divya Khandar. Divya Khandar, are you there? Yeah. Okay. Chalo, Neki is traveling, so she will not be coming on video. Okay. All right, let's start. Polynomials में क्या क्या याद है 9th क्लास से? आदित्य मुंद्रा. So the equations like a plus b and all, the 12 equations. Okay. और? हाँ पुनीत बोलो. So remainder and factor theorem. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? So if there is something like a polynomial, so if we find like root of the polynomial, if it is there, then the remainder will be 0. If we take any number in p of x, we take p of 2 and we solve that polynomial and we get something that will be the remainder रिमाइंडर of what? of the polynomial when it is divided by that thing. Divided by what? I'm not able to say it in terms, but I know it properly, but not able to say it in terms. हाँ तो बोलो ना, to express it. Say in terms तो important है, to say it in whichever terms, say it however you want to say. So like example also can I give? Yeah. So if there's a polynomial, say p of x, which is equal to x square plus 5x Okay. plus 6. Okay. And if we take p of x as p of 2, say, so we have to solve it. It will give us x square, that is, instead of x, we have to substitute that as 2. P of 2 निकल गया, but what is the remainder here? अया पुनीत 20. तुम्हारा ये वीडियो है आधा कटा हुआ है, so I can't see you. Oh. और Yeah, कौन बता now- सकता है? किसको पता है रिमाइंडर थ्योरम? बताओ. मानसी राठी, tell me. Dhruv Shah, keep your video on. So I can't frame it in terms like. Doesn't matter. Tell me whatever you know. So it's a theorem which helps us to find the remainder of a given polynomial. Like we've given p of x and g of x. So maybe p of x is x minus 1 and g of x is 1. So when we substitute 1 in the place of x, so 1 Remainder- minus 1 is 0. But remainder होता क्या है? You guys are not putting remainder in proper terms. It's the leftover number. ध्रुव शाह, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है. लाइट के ऑपोजिट बैठो ना, ऐसे फेस द लाइट लाइक दिस. ऐसे ऐसे करोगे तो फिर कैसे दिखेगा? ऐसे तो फिर वो दिखेगा ना. फेस द लाइट. या फिर पीछे बंद कर दो उसको. ओके. रिमाइंडर क्या होता है भाई दिव्य खंदार?
Yeah, like when a dividend is divided by the divisor, and if there is the number remaining, then it is the remainder. करेक्ट. सो उसके लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा किसी चीज से ना, फिर डिवाइड करोगे तो जब डिवाइड हो जाएगा तो जो टर्म है उसकी कुछ चीजें तो उसके साथ पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, फिर भी कुछ नंबर बच जाएगा. दैट्स कॉल्ड रिमाइंडर, राइट? सो द नंबर दैट यू डिवाइडिंग इज कॉल्ड डिविडेंड. जिससे डिवाइड करो दैट्स कॉल्ड डिवाइजर. और जितना कोशेंट आया तो जितना टाइम्स मल्टीपल ऑफ डिवाइजर हो गया वो कोशेंट हुआ, फिर जो बच गया वो रिमाइंडर हुआ, राइट? सो पी ऑफ एक्स को तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम में? Who can tell? Naitri Shah. G of x. Yeah, sir, even I thought g of x. Puneet Sajdev. So the constant in g of x. नहीं. divisor. Okay. If you divide p of x by x minus a, then can you find the remainder? X minus what? X minus a. Then can you find the remainder? Yes, sir. What is the remainder? So p of a is the remainder. Correct. That is the remainder theorem. ठीक है? आ रहा समझ में? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे. ओके. Can you see? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं वहां से. Okay, so term, a single number or a variable or both multiply together is a term, right? So कोई भी एक polynomial में 6x plus 7y या 6xy है ना, तो ये हो गया टर्म, एक एक टर्म. ओके. अच्छा बताओ 6xy plus 7x, इसमें कितने टर्म? 2. ओके. 2 terms. Coefficient क्या होता है? The number that a variable is multiplied to in any term. For example, coefficient of 4y is 4, है ना? Coefficient of x is 1. Coefficient of 1 क्या होगा? 1 itself. Okay. Is it? उधर 1 is a variable constant. There's no variable. So 1 is a constant. 0. नहीं तो कोई होएगा नहीं, because it's not there. Okay, power or exponent. The power of a term denotes the number of times that term is multiplied to itself. For example, a to the power 2, है ना? X square, which means x into x into x, x into x. Cube मतलब 3 बारी x है ना? Okay, polynomial. तो ये सब तुम लोगों ने पढ़ लिया था grade 9 में, ठीक है? Constant polynomial की डिग्री है 0. क्यों? क्योंकि this can be written 6 can be written as 6x to the power 0. So x to the power 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. 1. ठीक है, तो 6 into 1 है, तो it can be written as 6x to the power 0, which means उसका डिग्री हो गया 0. लीनियर पॉलिनोमियल में ये हो गया x to the power 1, जिसमें हाईएस्ट इसका ये है, ठीक है? ओके. क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितना होगा उसका? 2. 2. और क्यूबिक का मतलब डिग्री कितना होगा? 3. 3. 3. ठीक है. बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 हो गया. ओके. अभी ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तब होता है जब y की वैल्यू 0 है. सो दैट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0, दैट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0, ठीक है? सो इफ y is equals to px, which means y is equals to polynomial in x,
अब उसमें बोलेगा कि जीरो क्या है, तो तब होएगा जब px इज इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो. गेट इट? So that value of Yes, sir. x when y is equal to 0 is the zero of the polynomial. यहाँ पे कितने जीरो मिल रहे हैं इस वाले में? Sir, 3. हाँ, 3. यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1. 1. 1. 1. यहाँ पे हैं 2 जीरो एक्चुअली. तो ये क्वाड्रेटिक का हुआ, ये 2 जीरो है, दोनों आइडेंटिकल है. बट स्ट्रेट लाइन होता तो एक जीरो होता. गेट इट? तो जब भी ऐसे कर्व टच कर रहा है यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे, तो उसको Okay. दो मानेंगे. एक इधर से आते हुए टच But, कर रहा है और एक उल्टा जाते हुए टच कर रहा है. हाँ बोलो. Our ma'am told only one will be counted. हाँ, Our ma'am told it will be only one. your ma'am told will be only This the one. third one. Yeah, that zero of the polynomial. ये इसका. हाँ. तो वो सवाल The आएगा exercise GPSC also. में और तुम यहाँ पे 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. Okay. So this is okay. I'll also prove it to you. So ये क्वाड्रेटिक का है ग्राफ, ठीक है? क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होते हैं? It can have a maximum of 2 two. zeros. मैक्सिमम ऑफ 2 नहीं, 2 जीरो ही 2. होते हैं. Okay. Now the 2 zeros can either be distinct and real. पढ़ा था ना ये? नहीं, एक्चुअली इस क्लास में पढ़ोगे, ग्रेड 10 में है क्वाड्रेटिक. हाँ, तो अभी पढ़ोगे तुम इसको. So it can be distinct और it can be identical. ठीक है, वो जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बाद तो ये क्लियर हो जाएगा. बट ये बहुत ध्यान से रखना कि जब एक कर्व ऐसे टच करेगा नीचे इसको, तो ये 2 जीरो होंगे और दोनों जीरो आइडेंटिकल है. So वैसे भी if it would be only 1 0, then it will be linear polynomial and उसका graph will always be straight line. Very Can't be good. curved. वेरी गुड. who said this? नेकी. Yes, sir. वेरी गुड, एग्जैक्टली. सो अगर एक ही जीरो है इसका मतलब उसका डिग्री क्या आएगा? 1. और जब डिग्री 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है ना. बट ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इसलिए 2 जीरो है. ठीक है, आया? 2 जीरो है मतलब इसका डिग्री कितना होगा? 2. यहाँ पे Two. इस वाले ग्राफ का डिग्री कितना होगा? 3. तो ये क्यूबिक ग्राफ होगा, है ना? ओके. Degree of the polynomial is maximum number of zeros it can have, maximum number of intersections with x-axis. Okay. ओके. अब ये फॉर्मूला याद है कि 9 में नहीं पढ़ा था इसको? No, sir. ओके, तो ये नोट कर लो आप. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px, where px is equals to ax square plus bx plus c, then the sum of the zeros, तो दो होंगे जीरो, क्वाड्रेटिक है तो अल्फा और बीटा, तो दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो माइनस बी बाई ए मिलता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी बाई ए मिलता है. ठीक है, और जब ये क्यूबिक लिए होता है तो ये होता है. इसको ये दोनों चीजें नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ. Sir, हाँ, you have to note down the first point only, right? दोनों पॉइंट. Okay, sir.
डन। अब ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो पहले वाले का क्या मतलब हुआ, अगर कोई पॉलिनोमियल है px वेयर px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें लिखना हो तो इसी फॉर्म में लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो यहाँ अभी क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। तो 2 जीरो क्या क्या है, अल्फा है और बीटा है। ये 2 जीरो हमने मान दिया, अल्फा बीटा कुछ भी नाम लग सकते हो, अल्फा और बीटा। तो ये 2 जीरो हैं, इनको दोनों को ऐड करोगे अगर दोनों जीरो को, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको रूट्स भी कहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो याद रहना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज सी बाई ए, ओके। अब ये पॉलिनोमियल जो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें कितने रूट्स होंगे, कितने जीरो होंगे इसके, 3 होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है इसकी, है ना। तो अल्फा बीटा और गामा, ये रैंडम नाम है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 जीरो मिले हमको, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम अल्फा बीटा गामा, तो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, याद रहना चाहिए, ठीक है। डन। चलो लिखो, सवाल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब इसके रूट्स का सम क्या होगा और इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। So it was -8 or +8? प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, सम कितना होगा, नेत्रिशा रॉन्ग। सर चार्ट में आंसर लिखना है। हाँ, अरे पुनीत रूट्स नहीं पूछा था, प्रोडक्ट सम गलत है। क्या एक्चुअली सही है, ठीक है ठीक है, नैत्रिशा करेक्ट और पुनीत इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट निकाला कैसे, सम कैसे निकाला पुनीत? So like x square minus 6x plus 8. So here a is 1, b is minus 6, and c is 8. हाँ, So we know that the sum of roots is minus b of a. So minus of minus 6 is 6, and c is 8. So 8 by 1 is 8. That is the product. okay, And after that, I found out the roots also. I thought we have to find roots. okay. Neki, how is sum equal to 0 and product equals to -8? Sum is minus b by... Sir, you said that equation was x square plus 8, right? No, X square plus 8, right? no, x square minus 6x plus 8. Got it? Oh, I missed the 6x. Okay, ठीक है, Yeah. ओके आ गया, ठीक है, डन। तो वैसे ही अल्फा बीटा गामा के हिसाब से भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial, then
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, अब लिख लो उसको, ये भी नोट कर लो, ये दोनों पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये दोनों नोट कर लो। तो अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है या अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन का अल्फा बीटा है, वो इक्वेशन तुम रिक्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। So like K, how will you find out K here? नहीं, के तो कांस्टेंट है ना कोई भी। अभी जैसे मैंने तुमको दिया, क्या दिया था वैल्यू, 6x² माइनस 6x प्लस 8, उसको पूरे के से Yeah. मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो विल बिकम 2x² माइनस 12x प्लस 16। तो के कुछ भी हो सकता है, के इज अ Okay. कांस्टेंट व्हिच कैन बी मल्टीप्लाइड टू द होल ऑफ द एक्सप्रेशन। हो गया नोट तो बता देना। डन। तो बेसिकली क्या हुआ था, माइनस बी बाई ए था, तो ए को इसने 1 ले दिया है, और माइनस बी था तो प्लस बी करने के लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दिया उसको, है ना। और सी वॉज अल्फा बीटा इफ ए इज 1, तो उस हिसाब से हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें पिछले साल तुमने याद की थी, बस खत्म हो गया। अब हाउ टू सॉल्व आ गया, बस इतना ही है इस वाले ग्रेड में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा, तो हाईएस्ट डिग्री है उससे पता चल जाएगा, हाईएस्ट पावर। ओके, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ 2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 2 को इधर डाल दोगे x की जगह पे, और ये पूरी px इक्वल टू 0 को इक्वेट कर देना, है ना। करके बताओ मेरे को, इफ 2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो a की वैल्यू क्या होगी, फटाक से बताओ। ओरली हो गया ये तो। के फर्स्ट करेक्ट आंसर ध्रुव, चेन्नई गलत है, और पुनीत करेक्ट, मानसी रॉन्ग, नेकी करेक्ट। सो बेसिकली कैसे करोगे इसमें, तो अगर 2 का 0 है मतलब P2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे 2 डाल दोगे, तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 ए इक्वल टू 0, मतलब 20 माइनस 5 ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 4, है ना। अनिर्वाण बटा 12/5 क्यों आ रहा है, बहुत सारे लोग का 12/5 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। अनिर्वाण
Yes, sir. Sir, I put the value of 2 in the x, and after getting the value of 4x square and 2x, I put equal to after the sum and then got the answer. कैसे 12/5 कैसे आया? 16 हो गया, 16 प्लस 2 to the 4. Oh, sorry, sir. Silly mistake. 16 minus 4 कर दिया. ओके ठीक है. Geometrical meaning of zero. So represent the quadratic polynomial blah blah on the number line graph paper and find its zeros. ठीक है. तो पहले प्लॉट करोगे x और y के अलग अलग वैल्यूज के लिए. प्लॉट करने से ऐसे ऐसे करके प्लॉट करोगे. ठीक है. तो यहां से तुम उसका जीरो निकाल सकते हो. तो एक टाइम पे x 0 होना चाहिए, एक टाइम पे y 0 होना चाहिए, ऐसे करके निकालो तो उससे तुम्हारा निकल आएगा. तो ये प्लॉट करना है. प्लॉट करना आता है? Straight lines, yes, but curved lines are little. ये तो क्वाड्रेटिक अगर है तो हमेशा इस तरह होएगा. अब कहाँ कहाँ पे होएगा उसके लिए तुमको थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए प्लॉट करने के लिए. ऑल्सो यू नीड टू नो कि एक्स को कहाँ पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा. तो एक्स एक्सिस को काटने के लिए वाई शुड बी 0. उसका पहले वो निकाल लेना. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. जस्ट अ सेकंड. एनीवे डू वन थिंग, इसको प्लॉट करने की कोशिश करो. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को प्लॉट करनी. तो कैसे प्लॉट कर रहे हो बताओ. x की अलग अलग वैल्यूज डालो, उससे y की वैल्यू मिलेगी तुम्हें. ठीक है. ये देखो x में कुछ नेगेटिव वैल्यू डालो, फिर पॉजिटिव वैल्यू डालो. अभी y को अगर 0 करोगे तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आएगी वो भी चेक कर लो, फिर प्लॉट करो. डन. गाइस लिव
हो गया क्या? No, sir, 2 minutes. ओके फाइन, टेक अ मिनट एंड डू इट. आगे बढ़ो फिर फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को जब हो जाए तो. So Hmm? we have to mark all these, right? You have to what? Mark all these. हाँ तभी तो, ये जरूरी नहीं है इसको ही मार्क करो, तुम कोई और भी कर सकते हो. नॉर्मली इसने क्या किया, -2 -1 0 1 2 ऐसे करके 5 पॉइंट्स ले लिए, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना. एक्स एक्स में इधर इधर मार्क करोगे तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है. बट ऑल्सो आई वुड से कि y इक्वल्स टू 0 के साथ भी क्या क्या आएगा वो देख लेना थोड़ा, और थोड़ा और दूर दूर कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क x इक्वल्स टू -4 -2 0 +2 +4. ये 5 पॉइंट मार्क करो. -4 -2 0 +2 +4. हो गया. 1 minute. So So like after marking the points, we just have to join them. No particularly. Okay. But what if the curve is like a little bit here and there? Show me how it's coming. Which are the points? I have not drawn the curve yet. Is it okay? तो देखो After -4 का इधर कहीं आएगा है ना, -2 का यहाँ पे आएगा, फिर 0 का यहाँ पे आएगा, +2 का यहाँ पे आएगा, +4 का यहाँ पे आएगा. तो इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कर्व कहाँ पे आने वाला होगा, क्योंकि ये 2 पे यहाँ है और 4 पे और ऊपर बढ़ रहा है. इसका मतलब कर्व 2 और 4 के बीच में आएगा, है ना. या हो सकता है 2 पे ही है कर्व, who knows. So that's why you just need to learn how to plot. But when in the exam, you should actually find the zeros pehle with the other method and then draw it like this. ठीक है, चलो done.
आगे बढ़। I have made it on Yes, the sir. book, not on the graph sheet. Is that okay? या अभी अभी के लिए ठीक है, बट बाद में ठीक से बनाना पड़ेगा। चलो आगे। Okay, sir. Relationship between zeros and coefficients of polynomial. If alpha beta are the zeros of polynomial blah, then find the value of c. चलो do this question. कैसे करोगे इसको? If alpha beta are the zeros of polynomial blah plus c such that alpha plus 1 plus beta plus 1 equal to 0, then find the value of c. कैसे करेंगे इसको? तो पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आ जाए। So we will take c as p plus c. CS First we will minus p x minus p it will be, right? We have to first remove the brackets. We will first remove the brackets. या पहले So it is x square minus px minus p plus c. The Correct. whole c which we take will be minus p plus c. The whole c that you take will be c minus p. हाँ. ऑल्सो अभी ये अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? Alpha will be minus 1, because if this is equal to 0, तो alpha plus 1 will be equal to 0, which is alpha equals to minus 1 and beta equals to minus 1, है ना? तो इसका मतलब minus 1 यहाँ पे डालोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p और x प्लस 1, तो 1 x की जगह माइनस 1 डालेंगे 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। एनीवे निकालो, चलो करो। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? p. नहीं So माइनस पी, by नहीं इट्स माइनस पी। बी की वैल्यू इज plus माइनस पी p ना, by no? Yeah. Okay. हाँ. और सी की वैल्यू है माइनस पी प्लस सी, तो यहां से ये आ जाएगा। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस था, है ना? ये दोनों में डिफरेंस है सोल्यूशन में।
Done? कोई डाउट है? यार everybody keep your video on first of all, because then I don't know who am I talking to. Are you guys even doing it? Keep your video on. चैट पे लिखा है. ओके, आदित्य मुंद्रा gave the correct answer. पुनीत gave the, I don't know, I mean पता नहीं कहाँ से तुम लोगों ने आंसर दिया है, बिकॉज कहाँ गया ये? ये माइनस पी है और यहाँ पे प्लस पी है, तो तुम लोगों ने क्या लिया हुआ है? प्लस पी से किया कि माइनस पी से किया? माइनस पी. हाँ, ओके. अभी अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, इसको खोल दोगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन, है ना? तो अल्फा बीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास सी माइनस पी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो सी माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू 0. फिर कैसे किया पुनीत, कैसे किया फिर आगे? So then I took alpha into beta as c minus p by 1 हाँ, plus p by a as alpha plus beta was c by b, minus b of a हाँ, equals to minus 1. yeah, So a was 1, so nothing was there. So Yeah. it was c minus p plus p. So p got cancelled, so I got c is equal to minus 1. करेक्ट. ठीक है, अभी किसी से नहीं बना तो बताओ. So what is the निर्मल answer? बोला So could you explain it once? ओके ओके, डू विथ मी, एवरीबॉडी डू विथ मी नाउ. ये लिखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस सी. अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके जाओ तो क्या बनेगा? इलीना कुलकर्णी टेल मी, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? So it will be x square minus px minus p plus c. ठीक है, तो इसमें व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ए? So a will be 1. ओके, व्हाट विल बी बी? B will be minus p. करेक्ट. व्हाट विल बी सी? So c will be p minus c. नहीं, सी माइनस पी होगा ना. वाइल इट बी पी माइनस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना. Yes. ऊपर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी. उसको तुम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो सी की वैल्यू आएगी सी माइनस पी, राइट? Yes. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी इस वाली इक्वेशन में? So then that will be minus p by 1. Why? It is minus b by a, right? So minus of, and then what is the value of b?
What is the value of B, Lina? So value of B is minus P. तो माइनस पी है ना, सो यहाँ पे फिर इस फॉर्मूले में डालोगे तो माइनस ऑफ माइनस पी होएगा, विच इज पी, माइनस ऑफ माइनस पी. So alpha plus beta will become P. So it will be P by 1. ठीक है. अनिर्बान भट्टा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? सर माइनस C by A. कैसे भाई? C की वैल्यू क्या है? इसका C का इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे? हाँ? So C is equivalent is so nothing. इक्वेशन क्या है इसका? What is the equation? What is the quadratic equation here? Sir AX square plus BX plus नहीं C. नहीं, ये वाला इक्वेशन क्या है? इसको खोलोगे तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसा लिखेगा ये? खोलो So ना. unable to understand. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, x का कोएफिशिएंट चाहिए और कांस्टेंट चाहिए. तो इसमें x, इसको पहले x का कोएफिशिएंट के लिए इसको खोलना पड़ेगा ना, इस ब्रैकेट को. Yes. तो खोलो, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस X square minus PX plus P plus C. प्लस p कैसे भाई? ये माइनस p इंटू Oh, प्लस. so minus P plus C. तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? So X square is 1. का कोएफिशिएंट इज 1. x का कोएफिशिएंट क्या है? 1. x का कोएफिशिएंट क्या है? इसको लिखा है तुमने, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी कॉपी में लिखो ना, इसको खोल के. x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी. इसको सिंटिक लगाना पड़ेगा लग रहा है. Sir minus P. माइनस पी है ना, तो लिखने से आएगा भाई आगे. Yes, sir. बाकी सारे लोग भी ध्यान से सुनते रहो, एक आदमी को समझा रहा हूं तो बाकी लोग भी सुनते रहो. So then if you have any doubt then you can ask me. Okay, I'll not explain the same thing again and again. और उसका कांस्टेंट क्या है? बोलो अनिर्बान भट्टा, कांस्टेंट क्या है इसका? c की जगह पे क्या लिखा हुआ? So C. ax स्क्वायर प्लस bx. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 निकल गया, फिर bx जो x का कोएफिशिएंट था वो माइनस p, वो भी निकल गया. अब क्या बचा? बाकी क्या बचा? C. अरे इक्वेशन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के बताओ. बताओ. x स्क्वायर माइनस पी एक्स, फिर क्या है? X square minus PX minus P plus C. तो x स्क्वायर निकल गया, अभी माइनस पी एक्स भी निकल गया, तो अब क्या बचा? Minus P plus C. तो माइनस पी प्लस सी बचा ना कांस्टेंट. माइनस पी Yes, प्लस sir. सी के साथ में कोई एक्स वेक्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा ना, तो कांस्टेंट हुआ ना फिर. Yes, sir. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें? फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए. माइनस बी क्या होता है? एक्स के साथ जो लगा होता है वो बी, तो माइनस बी बाई ए. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? No, sir. No, sir. ओके वेट, जस्ट कनेक्ट.
ओके बोलो, सवाल बोलो क्या था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं हम अनिर्बान भट्टा? ax स्क्वायर plus bx plus c. सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ इतना होगा। ओके, अब हमारा सवाल में क्या दिया हुआ हमको? एक्स स्क्वायर, फिर क्या था? minus p हाँ, x प्लस 1 x plus 1 plus c. इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि ये x नहीं है यहाँ पे, x प्लस 1 है, हमको x चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स फिर माइनस पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो a हो गया है ना, a हो गया, ये 1, तो ये 1a हो गया है ना। अभी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और x के साथ में क्या है, माइनस पी है ना। तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू एक्स है ना। और फिर ये बाद में क्या बचा इधर कांस्टेंट, माइनस पी प्लस सी, ये बचा ना। Yes sir. इनके बीच में प्लस प्लस साइन लगेगा, तो ऐसा दिख रहा है। तो a इक्विवेलेंट क्या है, जो a इज इक्वल्स टू कितना इधर, a इक्विवेलेंट क्या है, 1 1 इक्विवेलेंट कर देते हैं, ठीक है। और b का इक्विवेलेंट क्या है, minus p और c का इक्विवेलेंट क्या है, minus p plus c. ओके, ठीक है। आया अभी तक समझ में सबको? अब यहां पे Yes. हमको और क्या दिया था उसने, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया था ना। अब हमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अनिर्बान भट्टा, अभी नोट किया? अल्फा प्लस बीटा की Sir, alpha plus beta is minus b by a. माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस, अब बी कितना है, Sir, b minus p. तो माइनस बी, तो ये गलती मत करना, माइनस बी, तो माइनस पहले लिख दिया, बी की जगह माइनस पी लिखा, बाई ए 1 है। तो कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, पी बाई 1 plus हो गया। p. अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, Alpha into beta minus p plus c upon 1. ठीक है। तो इतना हो गया है ना, ये आ गई वैल्यू। अब ये जो हमको दिया हुआ था अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है ना, फिर प्लस अल्फा, फिर प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको खोलने से ये आएगा ना, Yes. पहले अल्फा से Yes, मल्टीप्लाई sir. किया इसको, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमको दिख रही है माइनस पी प्लस सी। फिर ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दिख रही है प्लस पी, है ना, Plus p. प्लस पी है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस पी प्लस पी कट गया, तो सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट टेल्स अस सी इज इक्वल टू माइनस 1। आया? Yes, sir. ऐसे करना है, अभी करो, खुद से करो अपनी कॉपी में। एवरीबडी गॉट इट? आदित्य मुंद्रा, डिड यू गेट इट? ध्रुव शाह, दिव्य खंदार, दिव्य खंदार वीडियो क्यों ऑफ है, मैं कितने बार बोला अभी? दिव्य खंदार इज नॉट ऑनलाइन, हो व्हाट? क्या, कहाँ चले जाते हो भाई दिव्य खंदार? हाँ, No, there was much sunlight coming, so I saw. Like, सनलाइट तो तुमको वैसे भी आएगी ना, वीडियो बंद करके सनलाइट थोड़ी बंद हो जाएगा। सनलाइट के लिए कर्टेन बंद करो, वीडियो क्यों बंद करो? अभी लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, कोई बात नहीं। ये आया समझ में सवाल दिव्य कंदार? Did you understand the solution?
Yes, sir. ओके नैत्रिशा आया समझ में? Yes, sir. ओके सो सॉल्व कर लो खुद से, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, that's how you get this -1. Formation of quadratic and cubic polynomial. चलो, find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are -3 and 2. तो अल्फा प्लस बीटा है -3 क्योंकि सम ऑफ जीरोस, और ये अल्फा इंटू बीटा इज 2. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? इससे पहले नोट किया था तुमने, है ना? वही वाला Yeah, फॉर्मूला that's लगाओ. x square minus a plus bx plus ए प्लस c. बी नहीं, अल्फा प्लस बीटा. ए Alpha. और बी दूसरी चीज है, अल्फा बीटा दूसरी चीज है. हो गया? डन. ओ काफी लोगों ने भेजा है. ओके कूल, बहुत सिंपल है ना? तो अल्फा प्लस बीटा इज -3, अल्फा बीटा इज 2. सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. यहाँ पे डाला, खत्म, डन. गुड. डिवीजन एल्गोरिथम एंड लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. डिवाइड डैश बाय डैश एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. चलो डिवाइड करो उसको और बताओ क्या आ रहा है. दिव्य कंदार, यू हैव टू टेल मी. Yes, sir. 2 minutes. Yeah, I'll be back.
Done. Okay. So divide किया तो आया 2x, नहीं और भी होगा, 2x minus 1 and 3. Cool. Done. है ना? To find remaining zeros when some zeros are given. So given that 2 is a zero of a cubic polynomial blah. So find its other two zeros. So कैसे निकालोगे? 2 अगर zero है मतलब कैसे करेंगे आगे? पुनीत बताओ. Yeah, sir. So first, given is 2 is a 0, that means x minus 2 will be a factor of the polycubic हाँ, तो फैक्टर polynomial. थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से आ गया. ठीक है. So अगर कोई जीरो है इसका मतलब कहाँ है इसका नोटेशन नहीं आ रहा, बट एनीवे. सो बेसिकली इफ x if a is a zero then x minus a is the factor. ठीक है. तो 2 is the zero then x minus 2 is the factor. इसका मतलब इससे तुम डिवाइड कर सकते हो, x minus 2 से इसको डिवाइड कर दो. तो बताओ कितना आएगा x minus 2 से डिवाइड करके? दीपिक अंदर बताओ कितना आएगा x minus 2 से डिवाइड करके? Sir, हम्म. I'm confused. Like, is it x minus 2x or x minus 2x? x minus 2x कैसे होएगा? फैक्टर थ्योरम याद है लास्ट ईयर का? हाँ. हाँ. तो अगर px का जीरो है a, if a is the zero of px, ठीक है, if a is zero, if a is a zero of px, which means p of a will be zero, है ना? Yes. Also x minus a will be a factor. Factor of px. ये रिमाइंडर थ्योरम हुआ. So यहाँ पे 2 is a zero, which means x minus 2 is a factor. तो करो डिवाइड, इसको x minus 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ?
Done. So on dividing it by x minus 2, I suppose I'm getting a remainder. Yes, Yeah. so me too. Actually Minus रूट 2 है. 6. This is रूट 2. Oh. क्योंकि यहाँ पे देखो इसने x माइनस रूट 2x किया ना, तो ये दिस इज So why root x minus root 2x? या why is this रूट 2x? नहीं, this is not root 2x, this is root 2 only. रूट 2. ओके, तो ये इधर रूट 2 से ही कर रहा है ना ये. सो रूट 2, दिस इज नॉट 2, दिस इज रूट 2. कितना आ रहा है? आया दिव्य कंधार, क्या आया? x plus 2 x in 6 into 2 6 into 2 मतलब Sir, I have written in the chat. हाँ क्या लिखा बताओ ना. Sir, it is 6x square plus 7 root 2x plus 4. 7 रूट 2 x plus 4, ये तो हाँ यहीं पे लिखा हुआ है. तो आप इसको इसको और फैक्टराइज कर लो. तो ये फैक्टराइजेशन मेथड अभी सिखाया नहीं है ना तुम्हें, क्वाड्रेटिक नहीं तुमने सीखा है, तो कोई बात नहीं. लास्ट ईयर सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड. हाँ Yeah. हाँ, तो फिर उससे कर लो. Yes, sir. उससे और फर्दर इसको फैक्टराइज करके आगे बढ़ सकते हो. करो फैक्टराइज इसको इस तरह से. डन.
Sir, done. ओके ये देख लो, अगर नहीं बन रहा है तो मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है सोल्यूशन. So I did not understand one thing. Yeah. In step 2, it is the second one is now equals to 3x, 2x plus root 2 plus 2 root 2. So 2 root 2 they have taken it as how I did not understand that part. Why have they taken 2 root 2? Yeah. No, like how? How they have Because you calculated want 2 this root to be common, na? 2x plus root 2 you want common. 2. Yeah. So अंदर 2x छोड़ने के लिए यहाँ पे 2x छोड़ने के लिए तुम 2 root 2 बाहर निकालोगे तो 2x बचेगा. Okay. अनिर्वाण बट्टा आया समझ में? Yes, sir. Okay. Okay. Next. हो गया? करें आगे सवाल? Okay, look at the graphs in figure blah. Each is a graph of y equals to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. चलो एक एक करके लेता हूं मैं. पुनीत सचदेव, पहले ग्राफ का कितने जीरो होंगे? 1, sir. Okay. ठीक है. Okay, fine. 1. इसमें एक trick है, but fine, I'll get back to you once I get that, once I confirm that particular trick. Okay, next is Naitri Shah. इसमें कितने जीरो है Naitri? Sir, 2 zeros. Okay. अनिर्वाण भट्टा, कितने जीरो है? Sir, 3. Okay. फिर who's the next one? मानसी राठी, कितने जीरो हैं इसमें? 1 0. करेक्ट, 1 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 एक ही जगह पे कर रहा है. ओके, दिव्य खंदार, इसमें कितने जीरो हैं? 1 0. Anyone who would want to correct him? हाँ बोलो पुनीत. Sir, 2 0. हाँ, क्यों 2 0 है? Because as you said, sir, they meet at 2 points and it is a quadratic from the graph we can see. So they that's meet 2 at 0. single point. So दो जीरो हैं और दोनों ही identical है. So Divya Distinct Khandar, how lines. many zeros does it have? It has 2 zeros and both of them are identical. Okay, Divya, did you get it? Because this is a quadratic Yes. equation का graph. So quadratic में दो जीरो होते हैं ना, तो ये दोनों दो जीरो हैं, दोनों identical है. That's a very important point. Okay, next, Elena, how many zeros? So 4 zeros. Okay, cool. All right, find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. चलो फटाक से डाल दो चैट पे. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दिव्य खंदार बोलो. Sir, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? yes. Ax square, or like px is equal to ax square plus bc plus c. नहीं, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा बीटा दिया हुआ है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? लास्ट में अभी हमने लिखा था, बोलो. दिव्य खंदार, नोट किया है क्या जो लिखा है मैं अभी? Sir, I think this only will be used. हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो ना. Sir, I think
This only the formula I said will be only equals to. What is the I'll formula? try with that. No, what is the formula? Yeah, ax square plus bc plus c. Plus bc plus c. हाँ, ax square plus bx plus c equal to 0, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं पूछ रहा हूँ कि जब अल्फा, यार तुम कहीं और देख के आंसर करते हो क्या? मतलब समझ के आंसर करो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको गलत हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट जस्ट लुक एट समवेयर एल्स ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है दिव्य कंधार यहाँ पे? दिव्य, हेलो, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3 and 2. -3 and 2 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू है -3। अल्फा प्लस बीटा, ये दो जीरो है ना, सम दोनों का सम जो है वो है -3, और अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है ना, ये इसकी वैल्यू है 2। तो जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी होती है तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? अभी मैंने नोट कराया था, तुम्हारी कॉपी में देखो कहीं दिख रहा है कि अल्फा बीटा ये सब दिख रहा है कॉपी में? अनिर्बान भट्टा बताओ फॉर्मूला। Sir, formula is kx square minus alpha plus beta x K x plus square alpha minus beta. alpha plus beta x plus Alpha into beta. very good is equals to 0. ये फॉर्मूला है। Divikanda, did you get it? Have you noted this formula down? No. तो अभी तो दिखाया था ना ये फॉर्मूला, और नोट करने के लिए टाइम भी दिया था मैंने। ये इसको नोट करो। भाई जो जिस टाइम पे जो काम दिया उसको कर लो प्लीज, नहीं तो नहीं होएगा ऐसे आगे। ये देखो, जब ये दिया हुआ है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा। दिया था अभी नोट करने के लिए, नोट कर लो दिव्य खंदार, एंड एनीवन एल्स हु इज नॉट नोटेड डाउन, नोट इट। और ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डन? दिव्य खंदार नोट किया? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना बाद में। ओके, ये तुम्हारे बुक में भी हमने दिया हुआ है। ओके, तो इससे कहाँ थे हम? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिख दो और अल्फा बीटा की जगह 2 लिख दो, तो क्या आंसर आएगा? ओरली बन जाएगा ना ये फिर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आएगा क्या? Yes, sir. ओके, But sir, we can do it from another method as well, right? which method? Yeah, sir. So We we know that can a just plus take the b. values of a, b, and c, and then substitute in the standard from ax plus b, ax square plus bx plus c. No, how will you find the values of So a, b, a and plus So we have As- minus b by a is equal to -3 by 1. So b is equal to 3, a is equal to 1, and similarly c is equal to 2. Because c by that's a how is you equal to get 2 that by 1. formula, na? That's how you get that formula of minus then alpha plus beta. The reason why that formula is given to you so Okay. that you can do it in one step, so that you don't have to do it in 5-6 steps. अब वो Okay. फॉर्मूला भी वहीं से आया ना, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, इसलिए वो माइनस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया उधर। You get it? It's like Yes. saying, sir, instead of writing a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, can we write a plus b whole square is a plus b into a plus b and then a into a plus b plus b into a plus?
Of course you can write it, but that's going to take 6 steps. This is going to take, and since you're growing, you need to do it this way. तो अगर तुम इस मेथड से नहीं करोगे तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे. सो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जब दी हुई हो तो वो इक्वेशन लगाना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हुआ. ठीक है, चलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. इसका कितना 0 होगा? 0. एक भी none. रियल 0 नहीं है. ठीक है, तो कोई भी रियल 0 नहीं है, इमेजिनरी है क्योंकि कहीं मीट ही नहीं कर. यहाँ पे कितने 0 है? 1. 1 0 है, तो एक रियल 0 है. यहाँ पे 0 बनना चाहिए था बट रियल में नहीं बना. यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 0. चलो यहाँ पे कितने 0 है? 2. यहाँ पे 1 2 3 4 है ना. यहाँ पे कितने 0 है? 5. 5. वेरी गुड. 5 क्यों है? 1 2 3 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 zeros है ना. ऐसे जब जहां पे भी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है उसको हम 2 0 मानते हैं. तो एक यहां से आता हुआ एक 0 है, एक यहां से जाता हुआ 0. एक 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, तो 5 zeros. ठीक है, so this is 5 0 not 3 0. Get it? All Yes, right. Okay. Find out each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. चलो करो फटाफट. पहले 2 करो, सम और प्रोडक्ट. सम 1/4 है, प्रोडक्ट -1 है. दिव्य खंदार कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दिव्य खंदार, ध्रुव शाह, Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? X square minus Yeah, it's A plus B, that theta alpha and plus beta. Alpha plus beta. alpha plus theta X Beta, plus beta. alpha. बीटा. मैं लिख देता हूँ, रुको. ये इसका मतलब है अल्फा. ठीक है, ये है बीटा और ये है गामा. ठीक है, Yeah. तो क्या फॉर्मूला है? X square minus bracket alpha plus beta into X plus alpha into beta. वेरी गुड. इक्वल टू 0. तो बस खत्म हो गया यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4x, फिर -1 इक्वल टू 0, है ना. फिर ऊपर नीचे कर लो. सिमिलरली बाकी सब भी बन जाएंगे फटाफट. चलो फटाफट. So our ma'am told like you should not leave a polynomial fractions. So we have to multiply all of them by तो ले जाओ ना, 4. ऊपर ले जाओ उसको. So it will be 4x. So like that you have to do in exams also. हाँ कर लो. मतलब see a proper mathematician has no problem with this. बट अभी अब तुम क्योंकि जब ग्रेड 10th में ही हो तो उसको ऊपर ले जा सकते हो, बट ऐसे रखने से भी कोई इशू नहीं है. प्रॉब्लम इज जब x का जो x के ऊपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. दैट विल नॉट बी प्रॉपर. ठीक है, So are we gonna do Kahoot today? आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे. व्हेन यू गाइस हैव प्रैक्टिस अ लिटिल. Very soon you'll have something very exciting also, hopefully. Let's see.
And so what about the books, the workbook one? Workbook. That the parts were missing, right, of each chapter, the definitions. वो हमने इसलिए हटाया हुआ बिकॉज दैट इज एनीवे गिवन इन द चैप्टर नोट्स, बट तुम्हें इसका वो भी तो दिया ना हमने ऑनलाइन कॉपी, Okay, so from तुम there वहां only से we रिवाइज can कर do, right? सकते हो, वहां से तुम रिवाइज कर सकते हो. So actually, I was just seeing this question, and I was searching this question in the workbook, but I am unable to find this question, the same question. I can't understand what is Yes, sir. So this question is missing in our workbook. which question. This 2.1.5. तो ये आगे कहीं आया होगा ना, ये कई बार ही सेम क्वेश्चन दो बार आ गया था No, तो sir, हमने it's उसको not हटा there. दिया. So it's not there. The whole. उसकी जगह कौन सा क्वेश्चन. So we have the graphs of y is equal to px are given in figure below. For some polynomials, p is bracket x. Find the number of zeros of p is bracket x in each case. So the one we did the last time, this one. This one. ये. Yeah, this question. उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है. After that, we have which is not the graph of a quadratic polynomial. क्या. Which is not the graph of a quadratic polynomial. ठीक है, उसके और आगे देखो ना, ये वाला क्वेश्चन कहीं पे भी आगे नहीं है क्या. No, sir, not in level 1, not in level 2 also. Which is not the graph of a quadratic polynomial. Yeah, so in the online one and the printed one, there are many differences. Like in the printed one, they are given topic Yeah, wise. sir, So in 2.1.10. online, The sixth one is 2.1.10. So we have given it topic wise in the online and the printed one. no, in the online one, it is directly first NCRT, then exemplar, then miscellaneous. But in the printed workbook, it is first given something about the alpha beta one. Then in that there are questions given. After that there's another topic, then NCRT exemplar miscellaneous, like that it is given. So हाँ, तो हमने ahead topic wise divide कर दिया था उसको. हाँ. yeah, so ahead it will be there. Okay, I'll check it. But अभी तो ये solve करो ना इसको. पहले 3 solve कर लो फटाफट. Naitrisha, tell me, which question are you on? So I'm done with 3 of 3? them. I'm doing, yeah, I'm done till the third one. So बताओ third का क्या आंसर आया. Third, I'm getting x square plus root 5. Cool, simple. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Divide. दिव्य खंडार, where are you? Yes, sir. मैं तुमसे सवाल. Hello. तुम चलेगा. ये वाला सवाल पढ़ो 2.1.5. Yes. उसका 6 क्वेश्चन बताओ मेरे को करके. टेक योर टाइम, टेक अ मिनट. One. Okay. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दिव्य खंडार इसमें. पढ़ लो इसको सवाल और बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे. Sir, should we do the 6th question till then? नहीं, ये करो ना, इसका ये 6th वाला पार्ट करो ना, ये वाला. Sir, done. डन. ओके. दिव्य खंडार कौन सा फॉर्मूला. Hello. हाँ. Like k bracket x square plus Yeah. k bracket x square minus alpha plus beta x plus ab. अल्फा बीटा, ए बी नहीं, अल्फा बीटा. Yeah. ठीक है, तो के नहीं जरूरत है अभी, सिर्फ यू हैव टू से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 1, तो फटाक से आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे करना है. ठीक है, चलो तो यू गाइस डू द. अच्छा, इसका आंसर बताओ. चलो 2.1.8 का फटाक से क्या आंसर होगा.
So chat or this one? Chat क्विकली. ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? Puneet wrong, Divya wrong, Netri wrong. Actually, wait. नहीं ठीक है. Correct. Fine. Puneet correct, Divya correct, Netri wrong, आदित्य मुंद्रा wrong, मानसी राठी wrong. तो देखो क्या होएगा इसमें 4, इसका सम क्या होगा 0 का 4 प्लस -3 मतलब 1 है ना. और इसका वो क्या होएगा प्रोडक्ट 4 इंटू -3 -12. तो कायदे से इसका होना चाहिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1. तो x² माइनस x माइनस 12 होना चाहिए है ना. x² माइनस x माइनस 12. तो उसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2 is 6. तो ये तो दिस इज करेक्ट. तो उसका k की वैल्यू है 1/2 है ना. गेट इट. पहला आंसर क्यों गलत है? क्योंकि +12 है, होना चाहिए -12. ठीक है. बी तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे -1 होना चाहिए था और -12 होना चाहिए है ना. तो ध्यान से करो यार तुम लोग, काफी लोगों ने गलत आंसर दिया. आदित्य मुंद्रा क्या हो गया? ए क्यों बोला? सर बाय मिस्टेक. पहले बी बोला फिर ए बोला, तो ऑफ कोर्स दोनों मिस्टेक है ना. चलो. Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? पुनीत करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग. तो देखो ऐसे मैंने बताया ना, जहां पे भी ऐसे है गोल गोल ऐसा वाला, ये सब क्वाड्रेटिक होता है. ये टच नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब इसका 0 जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, असली में कभी टच नहीं हो रहा वो. बट यहाँ पे तो 1 2 3 बार टच हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है. तो डी इज द आंसर. गेट इट. ये वाला क्वाड्रेटिक है बट इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, असली में टच नहीं हो रहे. ठीक है. चलो तो फिर तुम लोग वर्कबुक से सवाल करो, लेवल 1 खत्म करो. और कोई डाउट हो तो पूछो. जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक. यू कंप्लीटेड लेवल 1. हाँ पूछो. लेवल पूछो. I had a doubt in question number 21. हाँ बताओ ना क्या है सवाल. So they have asked about degrees, but how can we find out about degrees from that expression? I did not get it. Okay, let me see. 8th question. So 21. 21 question. अब तुमने बोला ना अलग अलग है इसमें और उसमें. ये वाला. Tell me which question out of these questions. So why the question is not there? Degree ये? No sir. No sir. So why don't you just dictate the question to me? It's okay. Dictate the question to me. बोलो. Yes sir. The question is, can x² minus 1 be the question on division of x raised to 6 plus 2x cubed plus x minus 1 by a polynomial धीरे धीरे भाई. x of x to the power 6 plus 2x cube plus x minus 1 हाँ by a polynomial in x of degree 5.
हाँ, तो अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड किया x डिग्री 5 से, इसका मतलब ये होएगा x टू द पावर 5 से चालू होएगा ना। तो अगर x टू द पावर 5 है और ये इसका कोशेंट है तो 5 into 2 तो 7 हो जाएगा ना। So it's not possible. Are you getting my point? Okay, so the remainder should have the degree lesser than that division. नहीं, लेसर नहीं, रिमाइंडर थोड़ी है। ये रिमाइंडर पूछा है कि क्वोशिएंट पूछा है? ये क्वोशिएंट बोला ना तुमने। Question, yeah, sorry, question. क्वोशिएंट पूछा है, तो अभी x टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। अब x स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या होएगा? पहले x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 5 होएगा ना, पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x टू द पावर 7 आ जाएगा। तो ये तो जा ही नहीं सकता। Okay, understood, sir. ओके, और ठीक है, everybody go ahead with level 1, some and those who have done with level 1 start with level 2, but पूरा फिनिश करना है वर्कबुक जल्दी जल्दी, ताकि हम बाकी सवाल आगे कर सकें। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय। Sir, या sir, actually I've received someone else's workbook and on like तुम्हारा chapter ध्रुव शाह का है ना तुम्हारे पास? Yes. और ध्रुव शाह तुम्हारे पास दिव्य खंडार का है? Yes, sir. तो तुम दोनों आसपास रहते हो क्या? एक्सचेंज कर लो अपने से। I live in Goregaon West. Sir, actually, I live in Malad, and I think like the books are same, so I don't mind keeping his books. Like, हाँ, बट उसका अब नाम है तो उसको चाहिए ना वाला। तुम ध्रुव शाह, तुम कहाँ पे रहते हो? in Malad, मलाड ईस्ट और वेस्ट? West. तो मलाड वेस्ट, गोरेगांव वेस्ट, आसपास ही तो है भाई। I'll give you an idea. So, एक अगर तुम दोनों अपने में कोऑर्डिनेट कर सको तो वीफास्ट कुरियर नाम का होता है, 50-60 रुपए लेगा और इधर से पिक करके उधर दे देगा। तो ऐसा करा लो ना, या थोड़ी दिन वेट कर लो, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। Yeah, sir, if offline class started, we'll can exchange. हाँ, तभी एक्सचेंज कर लेना। सिर्फ कवर अलग है, बाकी अंदर सब सेम है। ठीक है, चलो, ओके, बाय।